student table in your database. Today we will see that how we can insert the record into the table. Okay, two method I will tell you about the insertion. Okay, it's a first method, and after that there is the second method also. I'm writing here the second method, insert into student. Suppose we have to import the record into the students table. Student record, and then suppose you have to write the column name. Suppose I have to enter only the roll number and gender, so I will write here only roll number and name. So I will write here the column name, that is roll number, and after that name. That's it. Okay, and after this write the values, and the roll number is, suppose whatever value you want to write here. Suppose 1, and the name is like this. Okay, so see here. Firstly, I will tell you that how you can insert the data into the table using these two methods. Okay, so to insert the value, I am opening the MySQL command line. MySQL. Okay, you can enter the password. Okay, and now see here. Directly, I can't insert the value. Okay, insert the value into the table. Firstly, what you have to do? Firstly, you have to open the database. So I want to ask about this. So Abdul, can you just tell us that how we can open the database? Which command we can write it here? Use database of a database name. Yes, that's it. No, there is no need to write the database word. Okay, only use and the database name directly. 12 CS. Okay, that's it. Because in the last class I have told you that use command is always used with the database. Okay, that's why there is no need to write the database. Database change. Okay, now we are in the database. Suppose we have forget to the table name. Okay, suppose table name, or we can say that structure of the table means which column is first. So now I want to know the structure of the table. So Shivam, can you just tell us that if we want to see the structure of the table, so what query we can write here? Yes, Shivam, say it fastly. मैम पता नहीं मैम. Okay, in the last class you were na? You were present in the last class? Means yesterday? Yes, ma'am. Yes, so in the last class, at the end of the class, I have explained you, but it's okay. Now I have not sent the link of that video, but today I will send it after the class. Okay, so you have to see it, and each and everything you have to note down in your notebook. Okay, means each and every query. So see it here. To see the firstly, we want to check that how many tables are stored in this database. So we have to write here the show tables. Okay, show tables means it will show all the tables, but if there is only one table. Now I have to insert the record in this table. So firstly, we should to see the structure of the table. If you know that the structure of the table means, if you know that the firstly roll number, name, gender, then there is no need to see the structure. But when there is need to see the structure, when we don't know the sequences of the column, because when you are inserting the data into the table, so you have to follow the sequence. If first is the integer value, then you have to enter the integer value, then then character type. Okay, so you have to follow the structure. So if you know, then there is no need to see the structure, and if you don't know the structure of the table, okay, sequence of the table, so there is need to see the structure of the table. So to see the structure, you can write here the DESC, describe student record. Okay, that's it. See it here. You can see there is a structure of the table. It's a field name. Okay, field name, it means column name. There is a 3 column, 1, 2, 3. The first is the roll number, name, and gender. Type, it means what data type you have used with these columns. Roll number has the integer. Now you can see there is the 11. 11 means you can store the till the 11 digit in the integer part. Okay, and null, it can accept the null.
Okay, default value is null. It means if you are not providing any value into the roll number, so defaultly it will take the null. Okay, and null, you can see here the yes. Yes means you can write the null also. Okay, आप null लिख भी सकते हो, और अगर आप इसमें वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हो तो वो डिफॉल्टली इट विल टेक द नल. ओके, मैं आगे जब आपको प्राइमरी की बताऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो लिखा आएगा, मीन्स प्राइमरी की कभी भी नल एक्सेप्ट नहीं करता. सो हियर इट विल बी नल. ओके सॉरी नो. ओके, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आपका नल नहीं रहेगा, बिकॉज आप उसके अंदर यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू. नेम, you can see we have written the varchar data type and its character is 20, means till the 20 character we can enter. Yes, null, yes means कि आप इसके अंदर null store कर सकते हो. Default value is null. If you are not providing any number, then it will take the defaultly null. And the next one is the gender. Gender is a char. Okay, you have seen that if you remember. Then we have not given the size to the char. Okay, but still it is taking the one character, because I have already explained you that if we are not providing the any size to the char variable, it means default value is the default size is 1. Okay, null, yes, it means it can accept the null, and default value is null. So see it here, whenever I will use here the suppose first method, if I am using here the first method to insert the data, insert the record into the table, then you have to provide all the values to the all the columns. Okay, but sometimes there is need to there is need to insert only few values. Okay, for example, I want to store only the roll number and name. Okay, and the gender, I don't know the gender, so I will only I will provide here the value for the roll number and name, and I will leave this one. Okay, so you can see the default is null. So it's mean if I will not write the null, but it will take default value null. So okay, so it will be more clear when I will explain you as a practical. So firstly, what we have to do, we have to insert the record. Okay, so we have to insert the record. To see it here, I want to store the record here. So see, suppose I'm writing here to store the value, to insert the value into the table, I will use here the first method, this one, insert into student. Okay, it's not student record, and then values. Okay, what we have to do, we have to insert in this table, and what we have to insert values. See it here, you have to write here the values. Values means there is a many values. Okay, not one. Parenthesis open and close, and write it here. Roll number is 1, and then name is Rohan, and after that the comma, next value is okay. It is for the roll number, name, and then gender. Gender is male. Okay, that's it. You can see query. Okay, one row affected. See it here. We have inserted the record. Now, if we want to check the value, if we want to check the record into the table, so what you have to write here? We have to write here the select no. Okay, see here, I will tell you the simplest way so that means आगे के concepts को ताकि आपका clear हो. So see कि मुझे तीनों column देखने हैं, roll number देखना है, name देखना है, gender. So I have written here, I have to write here roll number. Means select करो roll number, then name column, and then gender column. From किस table से? From student record. Okay, that's it. आपने कहा कि मुझे इस टेबल से क्या करना है, 3 कॉलम देखना है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, क्योंकि हमें पूरा रिकॉर्ड देखना है. सो वी कैन राइट इट हियर. सो यू कैन सी 1 सोहन एंड मेल आपका यहाँ पे शो कर दिया. ओके, तो वी हैव सीन टू इंसर्ट द रिकॉर्ड. ओके, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना देखा यूजिंग द फर्स्ट मेथड. अब देखो यहाँ पे ये सेकेंड मेथड है जो वो किस लिए यूज होता है. बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, जस्ट टेल मी that these two concept is clear or not. आपको describe का बताया मैंने, insert record बताया, and then how you can see your table. आप अपना table कैसे देख सकते हो using the select method, select command, select query. Is it clear to all? सभी को समझ में आ गया? Yes. Okay. So now see it here कि हमने ये देख लिया, and after that there is a second method. सेकेंड मेथड हम मेनली कब यूज करते हैं? जब हमें नहीं पता होता है, हमें सभी वैल्यूज को नहीं एंटर करना होता है. ओके, हमें ये पता है कि हमें 2 कॉलम में एंटर करना है, 3 कॉलम में एंटर करना है, 4 कॉलम में एंटर करना है, बाकी में नहीं करना है. देन फॉर दिस सिचुएशन वी यूज हियर द सेकंड मेथड. ओके, जब आप रियल लाइफ में काम करोगे ना,
तो फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे, लेकिन जब उसके अंदर अपडेशन करोगे तो यू विल यूज द सेकंड मेथड। ओके, मीन्स रियल लाइफ में जब आप काम करोगे तो ये, इसलिए आपको दोनों ही मेथड आपको पता होने चाहिए वेरी इन अ बेटर फॉर्म में। अब सीट हियर कि अभी मैं आपको जो फर्स्ट मेथड ही बताऊंगी कि फर्स्ट मेथड में मुझे दोबारा से वैल्यू एंटर करनी है, बट आई डोंट नो द नेम। ओके, मुझे नेम नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड व्हाट इज द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सो व्हाट, फिर नेम के लिए क्या करें, तो सी इट हियर, फर्स्टली आई विल शो यू द एरर। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रिकॉर्ड वैल्यूज। ओके, वैल्यूज में मुझे क्या पता है, रोल नंबर पता है, दैट इज द 2, एंड आई डोंट नो द नेम। ओके, नेम नहीं पता, बट इतना पता है कि वो बॉय है, मेल है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एम। तो सी इट हियर, it will give the error. Okay, see it here, error, column count does not match value count at row 1। आपने ये जो रो 1 में वैल्यू दिया है वो इस टेबल के से मैच नहीं हो रहा, मीन्स here you have provided only 2 values। okay, but according to the student record table there is a 3 column। आपने 2 कॉलम के लिए दिया है बट यहाँ पे 3 कॉलम है, सो यू कैन सी द एरर, कॉलम काउंट डज नॉट मैच। कॉलम काउंट जो हम कॉलम को हम काउंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल इट इज नॉट मैच, आपने जो वैल्यू दी है। ओके, तो सी इट हियर कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कॉलम टेबल में दिया है सो यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर द 3 कॉलम। ओके, सो इट्स डजंट मैटर, आप कहोगे कि मैम वी डोंट नो दैट वैल्यू, so what we can do, we can provide the null। okay, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो null, yes you can provide it null। तो see, आपको क्या करना है, अगेन you have to write here the insert into student record then values, and मुझे पता है कि रोल नंबर 2 है, नेम नहीं पता बट इट्स ओके, आई कैन राइट हियर द null and then मेल, दैट्स इट, कितना हम कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर कि आपका एक रो क्रिएट हो गया, एंड देन नाउ सी हियर कि मुझे दोबारा से सिलेक्ट, मुझे रिकॉर्ड देखना है, सिलेक्ट रोल नंबर नेम जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो यू कैन सी 1 2 नल मेल। ओके, ये नल वो है जो हमने प्रोवाइड किया है। इज इट क्लियर टू ऑल हाउ यू कैन स्टोर द नल वैल्यू इनटू द टेबल? यस शिवम, ऋषि? यस मैम। ओके गुड। तो सी, तो हमने ये अभी फर्स्ट मेथड देखा, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सेकंड मेथड टू इंसर्ट द वैल्यू। ये हम इसी सिचुएशन में करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि इस सिचुएशन में आपने क्या किया है कि आपने नल प्रोवाइड किया है, बट हम नहीं चाहते हैं कि हमें नल प्रोवाइड करना पड़े, बार बार लिखना पड़े। ओके, सो सी व्हाट वी कैन डू कि अगर हम इसके लिए वैल्यू नहीं एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक इसके पास नल चला जाए। सो टू डू दिस we use here the second method to see how you can do it here, insert into student record and then आपको कॉलम नेम प्रोवाइड करना है कि कौन कौन से कॉलम में आपको वैल्यू डालना है। तो आपने कहा कि मुझे रोल नंबर में डालना है। ओके, और सपोज मुझे जेंडर ही पता है, नेम नहीं पता है, तो आई विल राइट हियर द कॉलम नेम, रोल नंबर एंड देन जेंडर, एंड आफ्टर दैट वैल्यूज, आप वैल्यूज एंटर करो। ओके, वैल्यूज में आपका क्या है, रोल नंबर 3 और नेम आपको नहीं पता है। ओके, और जो आपको ये पता है कि वो फीमेल है जेंडर में। तो नाउ सीट हियर क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब सीट हियर कि मैंने यहाँ पे नल प्रोवाइड नहीं किया नेम के कॉलम में, बट यू व्हेन आई विल शो द डेटा देन यू विल सी द नल वैल्यू ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू, बिकॉज in the structure you have seen that default value is null। It means if we are not providing any value to the table to the column, so it will defaultly take the null value। so यहाँ पे क्या है, मैंने 2 ही को दिया, रोल नंबर और जेंडर को। so you will see कि रोल नंबर में आपका 3 आ जाएगा एंड जेंडर में आपका F आ जाएगा, और जो नेम रहेगा वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू इट विल टेक द null। so see कि मुझे सिलेक्ट दोबारा से वही करना है, दिस वन, सिलेक्ट रोल नंबर नेम जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। इस टेबल से मुझे तीनों कॉलम सिलेक्ट करना है। तो यू कैन सी हियर, इज इट क्लियर टू ऑल? सेकंड मेथड सबको क्लियर हो गया है? यस मैम। यस, आदर्श, कनिष्क, फोडू, अब्दुल, यस अब्दुल। मैम इन दोनों में से यूज कौन सा करना है? देखो यूज आपको दोनों ही करना है, अब मे बी दोनों ही करना है, वो आपको बताएंगे, मीन्स पूछेंगे कि हाँ आपको फर्स्ट मेथड से करना है, सेकंड मेथड से करना है, कैसे करना है। अब मे बी आपके कुछ स्टूडेंट के माइंड में होगा कि मैम हम इतना लेंथी लिख रहे हैं, बार बार कॉलम नेम एंड वैल्यूज लिख रहे हैं,
इससे बेटर तो मुझे यही ज्यादा बेटर लग रहा है कि मैं बस एक नल लिखूं और मेरा काम हो जाए। यस यू आर राइट, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब आप रियल लाइफ में काम करोगे ना, लाइक देखो ये जो हम कोडिंग सीख रहे हैं, ये कोडिंग हम सिर्फ अपने लिए नहीं सीख रहे हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम आगे नॉट बच्चों मीन्स आप जब रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाओ, आप रियल लाइफ कोई वेबसाइट क्रिएट करो, तो उसमें क्या होता है, आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको तो सपोज यू आर ए यूजर नाउ, यू आर नॉट अ प्रोग्रामर नाउ, और आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके आपने फर्स्ट टाइम तो फॉर्म फिल किया फर्स्ट मेथड के थ्रू, मतलब प्रोग्रामर ने फर्स्ट मेथड लगाया होगा, उसमें आपने सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी क्योंकि दैट टाइम इट्स कंपल्सरी टू स्टोर द ऑल वैल्यूज, ओके और उसके बाद से आपने मान लो कि फेसबुक में आपको कुछ वैल्यूज अपडेट करनी है, ओके आपको कुछ वैल्यूज नॉट वैल्यूज मींस वी कैन से दैट आप कुछ आपके जो प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा होता है उसको अपडेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप आईडी को तो नहीं अपडेट करना है ना, आप आईडी को नहीं करना चाहते हो, अपने नेम को सपोज नेम को करना चाहते हो और जेंडर को नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि उसमें कुछ ऐसा फॉर्म होता है कि सिर्फ आप उतने ही पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही फिल करते हो। आपको ये बेटर नहीं लगेगा कि अगर आपने सपोज आप छोड़ना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ छोड़ना चाहते हो, आप मोबाइल नंबर छोड़ना चाहते हो, तो आप फोर्सफुली यूजर कैन नॉट एंटर द नल वैल्यू, नल वैल्यू एंटर करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ओके तो हम ये सारी चीजें यूजर को नहीं दिखाते हैं, हम वो इंटरनली फिक्स कर देते हैं कि अगर यूजर ने कुछ नहीं एंटर किया है इसके अंदर तो वो आपका क्या ले लेगा, ऑटोमेटिक वो अपने आप नल ले लेगा। समझ रहे हो? यस यस तो हम जो ये बाद में मीन्स आप जब रियल लाइफ में वेबसाइट अगर सपोज इन फ्यूचर आपने सीख करके वेबसाइट को डेवलप किया तो हम फर्स्ट टाइम फॉर्म के बाद सेकंड टाइम में हम यही मेथड यूज करते हैं, तो बोथ मेथड आर यूज्ड, ओके दोनों ही मेथड यूज किया जाता है, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ओके सो नाउ yes okay so we have seen that how we can create the table and insert the value into the table, हमने दोनों मेथड देख लिया, ओके आफ्टर दैट मुझे आपको डिस्क्राइब के अंदर एक और चीज बतानी है, सो दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है मैंने आपको ये बताया कि अगर स्ट्रक्चर देखना है तो यू हैव टू राइट हियर द डिस्क्राइब एंड देन टेबल नेम स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके अब देखो यहाँ पे DSC इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिस्क्राइब, तो इन प्लेस ऑफ द DSC अगर आप नहीं भूल जाते हो सपोज बाय चांस तो यू कैन राइट हियर द फुल डिस्क्राइब वर्ड इज आल्सो, डिस्क्राइब स्टूडेंट रिकॉर्ड, सो देखो यहाँ पे दोनों में सेम ही वैल्यूज है, ओके तो होपफुली कि आपको क्लियर होगा एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या है okay so okay so see here to insert the value we have seen, आपको अगर अब यहाँ पे देखो कि एक कंसेप्ट है कि टू शो ऑल द डेटा फ्रॉम अ टेबल, वैसे तो ओके आई एम टेलिंग यू इट नाउ, सो सी इट हियर टू शो ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो कि अगर आपको पूरा टेबल में डेटा देखना है, पूरा रिकॉर्ड देखना है तो आप क्या करते हो, आपको मैंने आपको ये बताया कि आपको लिखना है और सिलेक्ट then all the column name you have to write here, the roll number, name and gender from student record, आपको मैंने ये बता दिया, but आप मे बी कि sometimes बाद अभी तो you can see there is only 3 columns here, so it will not tough, okay but when I will tell you that you have to create the table with the 5 or 7 column with the 5 or 7 column name, so that time it will be tough to write the all column name each and every time, so हम क्या चाहते हैं, अगर हम सब कॉलम के रिकॉर्ड को एक साथ देखना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ऑल कॉलम नेम, अब व्हाट वी कैन राइट इट हियर, वी कैन राइट ओनली द स्टार, हम सिर्फ स्टार लिख सकते हैं, ओके तो सी इट हियर सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है कि तीनों कॉलम की हम बात कर रहे हैं, सी इट हियर क्लियरली, मैंने ये पहले क्यों नहीं बताया कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ओके so star means we are saying to all column, we are saying that show the all column record star from then table name student record, that's it,
सीट है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया ये आपको कि स्टार और कॉलम नेम लिखने में क्या बेनिफिट है? यस मैम। यस। अब यहाँ पे देखो कि अगर स्टार यस स्टार अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको तीनों कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए। ओके अब रिकॉर्ड एक आए दो आए वो बात की बात है, वो हम देखेंगे, बट स्टार का मतलब है कि आपको तीनों कॉलम की बात मीन्स पूरे इस टेबल के पूरे कॉलम की बात कर रहे हो। अगर मान लो आपको दो कॉलम चाहिए सिर्फ, तो आप फर्स्ट जो आपको मैंने बताया था, राइट ओनली द कॉलम पर्टिकुलर कॉलम नेम एंड नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, select roll number name from student record. Is it clear? Okay. आप सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो इसके हमें सीक्वेंसेस। सिलेक्ट नेम, रोल नंबर एंड देन जेंडर अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Now see here. Now I am going to explain you about the event table of database manager. Okay. मैं अभी आपको जो सिखाऊंगी वो मैम आपको, हाँ बोलो। मैम जो हमने नल भरा है मैम उसको फिल कैसे करेंगे हम? नल किस में, कौन इसके अंदर? यस मैम, जैसे मैम हाँ, बाद में तो हमें आप पता चल गया नेम तो। बिल्कुल बिल्कुल आप इसके लिए आप अपडेट कमांड यूज करोगे। ये मैं आपको पहले टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट करना ये बताने के बाद आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द अपडेशन, डिलीशन एंड ऑल्टरेशन। ओके कि हम अगर नल वैल्यू Okay, इंसर्ट कर दिया है हमने तो हम उसको चेंज कैसे करें। ओके यस ओके मैम। यस। अब क्या है यहाँ पे कि आपको टेबल क्रिएट करना देखना है कि कैसे टेबल क्रिएट करें। तो आपको टेबल क्रिएट करने में हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपको कॉलम का नाम लिखना है एंड देन डेटा टाइप। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कॉलम में क्या डेटा टाइप है, इस कॉलम में क्या डेटा टाइप है। वो डेटा टाइप कैसे पता चलेगा? ये आपको डेटा वैल्यूज को देख करके। ओके आप जैसे ही कॉलम का नेम आपको पता चलेगा तो ऑब्वियसली आपको इतना हमारे पास मीन यू कैन से कॉमन सेंस और हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा किस टाइप का उसके अंदर डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो सी कि नेम है तो ऑब्वियसली है कि नेम 1 2 3 नंबर में तो किसी का होता नहीं है, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर में होगा। तो कैरेक्टर में अगर है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज हियर द कैर और वेर कैर, इट्स आवर चॉइस, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट डेट, डेट में क्या है, डेट में आपको पता है कि आप सिंबल यूज करोगे और नंबर, बट आपको ये भी पता है कि डेट के लिए एक अलग से डेटा टाइप है, दैट इज द डेट। ओके जो कि हम डेट में जब वैल्यू एंटर करेंगे तो कोट्स के अंदर रखेंगे। एंड देन टाइप, टाइप मीन्स ये क्या है कि ये किस टाइप का मीन्स वी कैन से द टेबल ऑफ डेटाबेस मैनेजरी, इसके अंदर मीन्स टाइप कि किस टाइप की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करनी है। ओके नॉट वैल्यूज, हम क्या कह सकते हैं इसमें, सपोज फ्लफी, बफी, स्लिम, ब्राउजर, फैंग, क्लॉज, विस्लर। अब सपोज मैं अभी के लिए आपको ये बता रही हूँ कि इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि किस टाइप का रिकॉर्ड है कि इसके अंदर वैल्यूज स्टोर करने, बट वी कैन सी हियर कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है। रिमार्क, अगर आपको रिमार्क देना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ऑब्वियसली है कि रिमार्क में आपका ये यू कैन सी कि नंबर और स्ट्रिंग दोनों ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटीजर और कैरेक्टर दोनों डेटा टाइप यूज करेंगे, नहीं, हमें पता है कि हमें दोनों को जब साथ में रखना है तो हम कोट्स के अंदर ही रखेंगे ये सारा पूरा एक रिकॉर्ड। ओके आप अलग अलग इसके लिए नहीं करोगे, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है तो 3 कॉलम बनाए, नहीं, एक ही कॉलम में डेटा है, ये नंबर और स्ट्रिंग दोनों ही है। तो हम स्ट्रिंग टाइप सॉरी कैरेक्टर टाइप का या वैर टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे। सो आई एम एंटरिंग हियर, आई एम क्रिएटिंग द टेबल हियर। तो सी कि आपको टेबल जब क्रिएट करना है तो आपको बार बार जरूरी नहीं है कि एंटर प्रेस करना, आप लाइक इसके जैसे भी आप एक लाइन में हम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा yes now it is here. ओके आफ्टर दैट मुझे इवेंट टेबल क्रिएट करना है, तो क्या करना है आपको, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम, एंड टेबल नेम वी नो दैट इवेंट, इवेंट एंड देन राइट हियर द पैरेंथेसिस, और सारे कॉलम आप इसी लाइन में लिख सकते हो। नेम एंड देन वी हैव रिटन द कॉलम नेम एंड आफ्टर दैट द डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्वियसली वेयर कैर एंड देन डेट, डेट हो गया एंड देन इसका डेटा टाइप डेट।
आफ्टर दैट टाइप, और इसके अंदर वैल्यूज जो हमने स्टोर करनी है वेर केयर टाइप की है, कैरेक्टर टाइप। तो नाउ आई एम राइटिंग हियर द कैर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज द बोथ वन, कोई सा भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, डोंट वरी। ओके, इसमें हम कैरी यूज करेंगे, इसमें वेरी कैरी नहीं, कुछ भी यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एंड देन रिमार्क, इसमें ऑब्वियसली इसमें भी कैर है, आई एम राइटिंग हियर द कि इसमें 40 कैरेक्टर तक मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। ओके, तो सी इट हियर कि मैंने एक लाइन में ये सारा लिख दिया। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अब वेर केयर यूज करो या कैर यूज करो, इट्स योर चॉइस। ओके, इसमें वैसे मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ कि कब क्या यूज करना है। ओके, बट अगेन मैं कुछ टाइम बाद अगेन आई विल टेल यू द डिफरेंस। ओके, क्योंकि मे बी सोडू को थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूजन है, बट सोडू मैं आपके लिए स्पेशली कह रही हूँ कि आप दोनों में से कैर या वेर केयर में से कुछ भी अभी यूज करो। फर्स्टली डू द प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद में आपको जब एक्सप्लेन करूंगी इसका डिफरेंस, देन इट विल बी क्लियर। ओके, तो सी इट हियर, query okay, 0 row affected, आपका query okay means table we have created. Now we have to see the structure, DSC and then event. see, name where आ गया, 20 दिया था, डेट का डेटा टाइप आपका डेट है। ओके, टाइप कैरेक्टर टाइप का है, 20 साइज है। रिमार्क में आपको मैंने 40 कैरेक्टर्स दिया कि एटलीस्ट आप 40 दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, 40 से कम दे सकते हो। एंड देन नल, नल सब में स्पेसिफाई कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू भी आपकी नल है। ओके, तो अब आपको वैल्यूज इंसर्ट करना आ गया, टेबल क्रिएशन बेटर तरीके से आ गया, टेबल को शो करना आ गया आपको। इफ यू वांट टू सी द all table at a time, so you can write it here, how you, what command you can write here, you know that now. ओके, और पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो पर्टिकुलर कॉलम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आपको पहले डेट चाहिए या नेम चाहिए या टाइप चाहिए, मींस यू कैन चेंज द सीक्वेंस व्हाइल सीइंग द रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड देखते समय आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक आप लोग मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, then good. Yes, ma'am. Okay, yes, so what will be the homework here? आपके पास everyone has the book. Okay, so you have to create this table and the pet table. ये दोनों टेबल क्रिएट करना है एंड आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ओके, यू हैव टू यूज द बोथ मेथड। आप करके आपको क्या करना है, इसका मींस एसक्यूएल में से फोटो क्लिक करके स्ट्रक्चर पे पूरा सिलेक्ट करके टेबल आपको मुझे ये दोनों का टेबल का फोटो क्लिक करके सेंड करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट और भी टेबल्स आएंगे जो कि आपको क्रिएट करने होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, और उसके बाद से आपको मैं आगे के कंसेप्ट बताऊंगी कि आप कैसे रिकॉर्ड्स को और फेच कर सकते हैं पर्टिकुलर